The group of frogs. As a group of frogs was traveling through the woods, two of them fell into a deep pit. When the other frogs crowded around the pit and saw how deep it was, they told the two frogs that there was no hope left for them. However, the two frogs decided to ignore what the other was saying and they proceed to try and jump out of the pit. Despite their efforts, the group of frogs at the top of the pit was still saying that they should just give up, that they would never make it out. Eventually, one of the frogs took heed to what the others were saying and he gave up, falling down to his death. The other frog continued to jump as hard as he could. Again the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die. He jumped even harder and finally made it out. When he got out, the other frog said, "Did you not hear us?" The frog explained to them that he was deaf. He thought they were encouraging him the entire time. Moral of the story: people people's word can have a big effect on others' lives. They think about what you say before it come out of your mouth. It might just be the difference between life and death. So it Yeah. is a very exciting story जहाँ पर हमें No, I पता really लग like. रहा है कि किस तरीके से जो डेफ व्यक्ति था उसने उसको एक एनकरेजमेंट की तरह लिया और वो करता चला गया, अपने ऊपर बिलीव करता चला गया एंड फाइनली ही मेड इट आउट ऑफ दैट पिट, वेयर एज द अदर वन हु वाज एबल टू hear others and understood that what they were saying was right and took that and died. And that's exactly what happens with us. हम में से बहुत सारे लोग Definitely. हमारे बारे में बोलते हैं और हम उसे मान लेते हैं और हम वैसे ही हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं और कई लोग उसे मान लेते हैं तो वो लोग अच्छे हो जाते हैं. नाउ अगर हमें इस वर्ड से एक सेंटेंस बनाना हो, ट्रैवल, तो क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं? Like इस स्टोरी से हाँ, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं ना, सो जैसे एक वर्ड है ट्रैवल, तो व्हाट सेंटेंस मैंने- कैन वी मेक यूजिंग द वर्ड ट्रैवल? लाइक ट्रैवल जो सेंटेंस बनाना है वो मुझे इस स्टोरी से रिलेटेड बनाना है या अपने आप पे अपने बनाना है? आप से कोई भी आप बना सकते I like to travel हैं. A lot. I like to travel a lot. Yeah. I love traveling. Mhm. And pit, P-I-T, pit. Pit. It was a big pit nearby my house, but Yeah. now it's okay, now it's filled up. It is filled up. Very good. Give up. Mhm. Give up. Sometimes I think I just give up I that I'm doing, but I always encourage myself to continue what I am doing. great. And despite, Despite. इसका मतलब होता है के बावजूद. Mhm. के बावजूद. बावजूद. When I have started my degree, that time my daughter was 3 years old. Despite of this, I finished my degree. Very good. तो despite के बाद हम लोग ऑफ नहीं लगाते हैं. Okay. So, despite my daughter being just 3 years old, I completed my degree. Despite it was raining heavily, I went to my college. और इसका जो equivalent word होता है जिसे हम बोलते हैं synonym, same meaning word, वो होता है in spite of. In spite of. तो अगर आप वो लोग लगा रहे हैं तो आपको ऑफ लगाना होता है, डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता है. ठीक है. Okay. यहाँ पर आपको सेंटेंस ऑफ द डे भेजा गया था और इसमें हमारा जो सेंटेंस ऑफ द डे में क्वेश्चन था वो था, मेरा भी मन मिठाई खाने का कर रहा था. बर्थडे पार्टी में बुलाया गया है. We are invited to a birthday party. मेरा भी मन कर रहा है चलने का. I also feel like going there. तो चलो तैयार हो जाते हैं. Then let's dress up. चलने का टाइम हो गया है. It's time to go. कैब बुक कर ले क्या? Shall we book a cab? Okay. मेरा भी मन कर रहा था मिठाई खाने का. I also want to eat sweets. Alright.
यहाँ पर हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं फील लाइक, फील Okay, I feel, लाइक। तो अगर इसका पास्ट टेंस बोलना है तो फेल्ट लाइक, Okay. फेल्ट लाइक। और अगर फ्यूचर बोलना है तो विल फील लाइक, विल फील लाइक। तो मेरा भी मन कर रहा था, आई ऑल्सो फेल्ट लाइक, और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ईटिंग या हैविंग स्वीट्स। आई ऑल्सो फेल्ट लाइक हैविंग स्वीट्स, आई ऑल्सो फेल्ट लाइक हैविंग Having स्वीट्स। sweets. इसके बाद था हमारा थॉट ऑफ द डे, सूनर और लेटर, सूनर Or और later. later. Those who win are those who think they can. तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है। ये बता रही है कि आज नहीं तो कल जो भी लोग जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा से ये मानते थे कि वो कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू इट। सो Yes, sir. बिलीविंग That's इन the योरसेल्फ belief, इज द yeah. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। और इसी तरह हमारा जो प्रोवर्ब होता है, वेल बिगन इज हाफ डन। प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत, वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब होता है अगर शुरुआत अच्छी होती है तो समझ लो कि आधा काम हो ही गया। अगर शुरुआत अच्छी है तो ये समझ लीजिए कि आधा काम फिनिश हो गया आपका, 50% इज ऑलरेडी डन। तो वेल बिगन इज हाफ डन। जब हम कई बार बोलते हैं ना शुरुआत अच्छी हुई है तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो हम बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। एक सेकंड होल्ड करना आप हाँ प्लीज हाँ, ना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं मेरी बेटी के रूम में चली जाती हूँ, वो आगे नीचे ना। Okay. You have started preparing for Christmas as well, as I can see the Christmas tree हाँ getting yeah. decorated. Yes, we live here so definitely we have to. It is, kind of a very big festival like Diwali in India. हाँ बहुत ज्यादा, गोरों के लिए तो बहुत टू मच होता है। They take long vacations during Christmas. Yeah, it's nearly for 2 weeks. We were talking about this idiom that is a hot potato. A hot potato हम ऐसे मुद्दों को बोलते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंसिटिव मैटर या कंट्रोवर्शियल मैटर, यानी विवादास्पद मुद्दे। So every politician should avoid a hot potato topic. This issue is a hot potato. Nobody wants to talk about it. तो हॉट पोटैटो मतलब एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा, एक कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, Is and there, it and there. इट एंड देयर। तो हम लोग जनरली देखते हैं हम लोग इट और देयर का इस्तेमाल, तो इट और देयर का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और फिर इसकी ऑडियो एक्सरसाइज की देखते हैं आप कितना अच्छा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि इट और देयर का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है। सो आप देख सकते हैं इट का जो यूज़ है हम लोग करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग डेट को बोल रहे होते हैं। डेट का मतलब समझ रहे होगे आप, हाँ हाँ, है ना? It. जहाँ पर हम लोग डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इट। फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है 21st, तो हम बोलेंगे इट इज़ 21st। जैसे आज है 4th, तो इट इज़ 4th, और मंथ है तो ऑफ दिसंबर, इट इज़ 4th ऑफ दिसंबर टुडे, या फिर इट इज़ दिसंबर 4th टुडे। तो जब भी हम डेट की बात करेंगे उसे हम हमेशा रोमन नंबर्स में बोलते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th लाइक दैट। और इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं इट का। इसी तरह अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम के साथ भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं, लाइक इट्स 5 o'clock, इट वॉज 4 PM when your phone rang। अगर हम वीकडेज की बात करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन हो, उसके साथ हमेशा ऑन का हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। जैसे इट्स मंडे टुडे, इट्स ट्यूसडे टुडे, इट्स वेंसडे, इट इज ट्यूसडे ऑन 7th of March, लाइक दैट।
अगर हम स्पेशल डेज की बात करें, स्पेशल डेज क्या होते हैं? जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, क्रिसमस है, दिवाली है, होली है, या कुछ भी हो सकता है। उस दिन हो सकता है कुछ आपने घर में फंक्शन रखा हो, कोई भी, उसके लिए आप बोलोगे इट। जैसे आपने कहा मेरे घर में किटी पार्टी है, तो वो एक स्पेशल डे हो गया ना। सो इट्स किटी पार्टी ऑन दैट डे एट माय प्लेस। इट्स अ किटी पार्टी डे। तो स्पेशल डेज के लिए आप इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वेदर की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, जैसे इट इज विंटर्स टाइम, इट इज समर्स टाइम, इट इज रेनिंग, इट इज वेरी कोल्ड, है ना। तो वेदर की बात हो या नेचर की बात हो, हम लोग वहां पर यूज करते हैं इट। अगर हमें किसी चीज को लेके अपनी ओपिनियन देनी हो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला यार बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, तो मैंने उसके बारे में अपनी ओपिनियन दी, तो मैंने कहा इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, इट वाज अ वेरी हॉट डे। तो ये मेरी उस बारे में उसको लेकर के ओपिनियन है, राय है, तो हम हमेशा इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट्स नॉट इजी लुकिंग आफ्टर किड्स, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। अगर हम किसी को फर्स्ट टाइम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, उसके बारे में फर्स्ट टाइम जिक्र कर रहे हैं, उसकी वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या बात कर रहे हैं उसकी, तो हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। जैसे मुझे लग रहा है ये मेरा फोन था, तो मैंने फर्स्ट टाइम फोन के बारे में बात करी। जैसे किसी का फोन बजा, मैंने कहा आई थिंक ये मेरा फोन था, आई थिंक इट वॉज माई फोन, आई थिंक इट वॉज माई फोन। लगता है रोहन था, आई थिंक इट वॉज रोहन। लगता है रोहन है, आई थिंक इट्स रोहन। लगता है सर्विस बॉय है, आई थिंक इट्स सर्विस बॉय। लगता है मेरी मेड है, आई थिंक इट इज माई मेड। ठीक है। इसी तरह उसी के और एग्जाम्पल है। लुक, अरे देखो अक्षय कुमार, लुक इट्स अक्षय कुमार। अरे मुझे लगता है रीना थी, आई थिंक इट वॉज रीना। तो ये होते हो गए हमारे इट के यूसेस, जहाँ पर हमने इसे यूज करा। और हम लोग इट को एक और जगह यूज करते हैं, जहाँ पर हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके दरवाजे पर आया हुआ है, कोई अंधेरे में है, आप उसे नहीं देख पा रहे हो, कोई फोन पर है, आप उसे नहीं देख पा रहे हो, तो आप हमेशा यूज करते हो हु इज इट। और आप चाहें तो यहाँ पर दिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब हम किसी को देख सकते हैं तो हम बोलते हैं हु आर यू, मे आई हैव योर नेम। लेकिन जब नहीं देख सकते हैं तो हु इज इट, हु इज दिस। और अब बात करें अगर देयर की, तो कह रहा है अगर कोई चीज़ किसी टाइम के लिए प्लान होती है, शेड्यूल्ड होती है, तो हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज शाम को एक मीटिंग है, देयर इज अ मीटिंग दिस इवनिंग। अगले हफ्ते एक पार्टी है, देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक। विथ क्वांटिटी एंड नंबर्स, जैसे there are around 10 birds in the cage, केज में अराउंड 10 birds हैं। there is enough water in the bottle, बॉटल में enough water है। to say where something or someone is, ये बताने के लिए कि कोई चीज या कोई व्यक्ति कहाँ पर है। there used to be a playground over there, हम यहाँ ये भी बोल सकते थे there was a playground over there। used to का मतलब होता है हुआ करता था, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड हुआ करता था। अगर आप नहीं करना चाहते यूज टू यूज, तो आप देयर वॉज भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेग्राउंड था। देयर वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल हियर, यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल था। देयर वॉज अ मैंगो ट्री हियर, यहाँ पर एक आम का पेड़ था। देयर इज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं है। इसको डमी सब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है, यानी कि जहां पर आपके पास कोई सब्जेक्ट ना हो और आपको सेंटेंस बनाना हो, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे
यार गांव में ना कुछ नहीं है करने के लिए, देयर इज नथिंग टू डू। कहाँ? इन द विलेज। यार लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, देयर इज प्लेंटी टू रीड। कहाँ? इन द लाइब्रेरी। The library. इसी तरह टीवी पे देखने को कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं आ रहा है, देयर इज नथिंग टू वॉच ऑन टीवी। अरे यार तुम्हारे लिए ना बहुत सारा काम था करने को, देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू टू डू। और कोई वेट कर रहा है यार तुम्हारा, देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू। बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे, देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल शाउटिंग एंड वेविंग। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर इट और देयर का यूज दिखाया गया है कि कैसे वो यूज हो रहे हैं, तो वी विल जस्ट रीड देम आउट। ऑलराइट, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इट और देयर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है विद एग्जाम्पल्स। सो इट्स रेनिंग हियर, इट्स रेनिंग Raining. हियर। My God. Is there a park nearby? Is there a chocolate in your bag? It's easy to blame others. There is a zoo in Nainital. There was something fishy. It's 6 o'clock by my watch. There was a lion in the zoo. It's my birthday today. Is there a match today? There are 7 members in my family. It was winter's time. अब है क्विज टाइम, आपको आंसर करना है इसका। It's very complicated. तो अब हम लोग पॉज नहीं करेंगे, आप सिर्फ आंसर करते रहिएगा। Dash was a boy walking along the road. There was a boy walking along the road. Very good. Dash might be some money in the drawer. It might be some money in the drawer. कहीं पर किसी चीज के होने की बात होती है तो इट नहीं आता है। Okay. There might be. Okay. हाँ, जैसे there might be couple of apples in the fridge. There might be some milk left in the fridge. There might be some bread left. So there. How long does Dash take to get the It take airport? to get the airport. It take. और यहाँ पे get के बाद to लगना चाहिए था क्योंकि हमारे पास destination है एयरपोर्ट। अगर हम destination नहीं लाते हैं, सिर्फ adverb लाते हैं here there तो नहीं लगता है, तो हम बोलेंगे how long does it take to get to the airport। इसका मतलब होता है पहुंचना, get to the airport। Airport. जैसे how much time will it take to get to the railway station। और अगर हम सिर्फ यहाँ वहाँ बोल रहे हैं तो get आएगा। जैसे how much time will it take to get there, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। how much time did you take to get here, आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, तब to की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर destination आएगा तो to आएगा। फटाफट से सेंटेंस आएंगे, फटाफट से आंसर करना है आपने, बिना I will try टाइम my लिए best. हुए, बिना टाइम लिए हुए। So there we go. All the best. आज संडे है क्या? It is 5 Sunday बज today. गए हैं। It's 5 o'clock. मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। It's 5 members in my family. फ्रिज में 2 एप्पल्स हैं। There are 5 apples in the fridge. बाहर बहुत ठंड थी। It was too cold आज मेरे outside. फ्रेंड का बर्थडे था। It was my friend's birthday today. वहाँ कौन है? Who is there? मेरा दोस्त था। It was my friend. मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। There is no money in my कमरे account. में कोई नहीं है। Nobody is ये at, मेरी the गलती room, थी। sorry. It was my fault. दरवाजे पर कोई है। Is there कौन है? somebody at the door? Who is there? कल ट्यूसडे है। बहुत खूबसूरत ड्रेस है।
It is really beautiful अंदर dress. बहुत गर्मी थी। It was really ड्राइंग hot रूम में outside. कोई नहीं है। It is no one. मेरे वॉलेट में पैसे नहीं हैं। Is there no money in my क्या wallet? ड्रेस ब्यूटीफुल थी? Is क्या the dress आज आपका beautiful? बर्थडे है? It is your birthday. क्या today? कल संडे है? आज It's 5 Sunday tomorrow. अगस्त है। Today is the 5th आज of मेरे दोस्त का बर्थडे नहीं था। It was no, आज मेरा एग्जाम नहीं था। it was no my बॉटल exam. में पानी था। ये It was water. आसान काम नहीं था। This was not a easy task. I think I stuck in some. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है? आई विल बी डूइंग इट नाउ। आज संडे है क्या? इज इट संडे टुडे? 5 बज गए हैं। इट्स 5। मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। फ्रिज में 2 एप्पल्स हैं। देयर आर 2 एप्पल्स इन द फ्रिज। बाहर बहुत ठंड थी। इट वाज वेरी कोल्ड आउटसाइड। आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। इट वाज माय फ्रेंड्स बर्थडे टुडे। वहाँ कौन है? हु इज देयर? मेरा दोस्त था। इट वाज माय फ्रेंड। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। देयर इज नो मनी इन माय अकाउंट। कमरे में कोई नहीं है। देयर इज नो वन इन द रूम। ये मेरी गलती थी। इट वाज माय फॉल्ट। दरवाजे पर कोई है। देयर इज समवन एट द डोर। कौन है? हु इज इट? कल ट्यूसडे है। इट्स ट्यूसडे टुमारो। बहुत खूबसूरत ड्रेस है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। अंदर बहुत गर्मी थी। इट वाज वेरी हॉट इनसाइड। ड्राइंग रूम में कोई नहीं है। देयर इज नो वन इन द ड्राइंग रूम। मेरे वॉलेट में पैसे नहीं हैं। देयर इज नो मनी इन माय वॉलेट। क्या ड्रेस ब्यूटीफुल थी? वाज द ड्रेस ब्यूटीफुल? क्या आज आपका बर्थडे है? इज इट योर बर्थडे टुडे? क्या कल संडे है? इज इट आज Sunday tomorrow? 5 अगस्त है। It's 5th of August today. आज मेरे दोस्त का बर्थडे नहीं था। It wasn't my friend's birthday today. आज मेरा एग्जाम नहीं था। It wasn't my exam today. बॉटल में पानी था। There was water in the bottle. ये आसान काम नहीं था। It was not an easy task. Yeah. So हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि उस टाइमिंग में हम उस सेंटेंस को बोलें। हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, क्योंकि अगर मैं आपको ट्रांसलेशन दूं, मैं इसका आपको बैकग्राउंड भी बताता हूँ कि अगर मैं आपको ट्रांसलेशन दूं लिखने के लिए तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है ना, लेकिन बोलते समय आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर मैं आपको ट्रांसलेशन देके प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप वो बोलने वाले टाइम से मैच कैसे करोगे? आप कर ही नहीं नहीं पाओगे। नहीं बिल्कुल